Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets. Welcome to the online classes. Myself, Mehran Khan Sheikh, MSc Pakistan Studies, lecturer, Cadet College, Panu Akil. Dear cadets, today we are going to discuss our lecture number 2 and chapter number 5. And the name of the chapter is The Culture of Pakistan. Today, in our second lecture, we will start our lecture from the heading Indus Valley Civilization. When we talk about Indus Valley Civilization, then we should know something about the Indus Valley Civilization. That when we talk about civilization, it means तहजीब, वो लोग जो पहले इस इलाके में इंडस वैली के इलाके में रहा करते थे. It means the people who used to live in the past time in the area of Indus Valley. And you should know that this Indus Valley area was watered or provided the water or the source of water to the Indus Valley was the Indus River and its tributaries. So this area in the present time is comprised of Pakistan. And when we talk about Indus Valley civilization, in this the Indus Valley civilization basically took place in the city of Mohenjo-daro, which is in Sindh, near the district of Larkana in Sindh. And another part of the Pakistan where the Indus Valley civilization took place or is located is Harappa, means district Sahiwal in the province of Punjab. Moreover, if when the archaeologists are the people who just do research or who do findings, who do find different things of history from the areas. They do research into the different areas and find out the historical things which are the things that are related to the past. So from the findings of the archaeologists, we see that there have been several proofs. There are several proofs which are the evidence जो हमें सबूत पेश कर रहे हैं कि ये जो civilization थी, ये जो तहजीब थी, these people were having this was a high civilization. This was a civilization which had a high standard. For example, the things that we have found from there, like the damaged buildings or the streets or the streets यानी roads वगैरह जो है, और दी रेजिडेंशियल लोकेलिटीज यानी कि जो सिटीज वगैरह जो रहने की जगहें हैं, वो जगहें या उनकी जो मार्केट्स हैं, और द ड्रेनेज सिस्टम, नालियाँ वगैरह जो बनी हुई हैं उनकी, और ऑन द अदर हैंड वी सी डिफरेंट पब्लिक बाथ्स यानी नहाने के जो बाथ्स वगैरह हैं, बाथरूम्स वगैरह हैं, और एंड देयर वे ऑफ लाइफ, देयर रिलीजन, एंड ऑल दीज थिंग्स आर शोइंग द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, देयर वे ऑफ लिविंग, यानी ये सारी चीज़ें हमें उनके रहने का सारा अस्लो उसलूक बता रही हैं. ठीक है. और उसके अलावा इन एडिशन वी हैव आल्सो फाउंड दी व्हीट, गंदुम हमें वहाँ से मिलती है, गंदुम के स्टॉक्स मिले हैं, एंड बार्ले स्टॉक यानी जो होती है, जो उसके हमें स्टॉक्स मिले हैं, डेट स्टोन्स यानी कि जो खजूर वगैरह होती है उनके स्टोन्स मिले हैं हमें. उसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो वी हैव आल्सो फाउंड दी वेपन्स ऑफ वॉर. वी हैव आल्सो फाउंड वेपन्स ऑफ वॉर. वी हैव आल्सो फाउंड वेपन्स ऑफ वॉर क्या है बेटा, यानी जंग के लिए जो भी हथियार इस्तेमाल होते हैं, नाइफ्स यानी छुरी वगैरह हमें मिली है वहाँ से. गोल्ड और सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स यानी सोने और चांदी के हमें डेकोरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, चीज़ें मिली हैं. ये सारे स्टेचूज यानी फिगर्स मिली हैं हमें. ये सारी की सारी चीज़ें जो है बेटा ये हमें वहाँ से मिली हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लोग जो थे उनके जो रहन सहन से हमें अंदाज़ा हुआ है कि ये लोग जो थे हाई स्टैंडर्ड यानी हाई, इनके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हाई थे, और इनमें जो है सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ के बताई हैं. तो सेकंड थिंग इन दिस वी विल डिस्कस द प्लानिंग ऑफ सिटीज एंड बिल्डिंग्स. तो हमें इस हेडिंग में हम देखेंगे कि किस तरह की उनकी प्लानिंग थी, किस तरह उन्होंने सिटीज को डेवलप किया था, हाउ दे डेवलप देयर सिटीज एंड हाउ दे डेवलप देयर बिल्डिंग्स. इन दिस हेडिंग वी विल बी डिस्कसिंग. सो लेट्स सी. Archaeologists, again, the people who do findings related to the areas that existed in history. तो हिस्ट्री के जो एरियाज तारीख में जो हमें एरियाज जिस तरह से मिलते हैं, जगहें जिस तरह की हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट उसमें फाइंड करते हैं.
और अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह के लोग वो हुआ करते होंगे उस ज़माने में। तो हमें जो बेटा चीज़ें नज़र आई हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें दिखाई हैं हमें, तो सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें जो चीज़ें मिली हैं कि भाई वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी, वहाँ पे स्ट्रीट्स थी, गलियाँ थी, रोड्स थे, बाज़ार थे, रहने के एरियाज़ थे, और रोड्स जो थी इस तरह से बनाई गई थी कि उनकी 33 फीट्स जो है वो विड्थ थी, यानी चौड़ाई जो थी रोड्स की, यानी बड़े-बड़े रोड्स थे, काफ़ी चौड़े रोड्स थे। सैनिटेशन यानी सैनिटेशन वाज़ वेरी गुड, यानी साफ पीने का पानी भी वो लोग जो है इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा जो ड्रेन्स फॉर दी डिस्पोजल ऑफ यूज्ड वाटर, यानी कि वहाँ पे नालियाँ वगैरह भी उन्होंने बनाई थी पानी को ज़ाया करने के लिए, जो इस्तेमाल शुदा पानी था उसको ज़ाया करने के लिए। और वहाँ पे अगर घर वगैरह थे तो वो बेग्ड ब्रिक्स के बने हुए थे, यानी पक्की ईंटों के घर वगैरह बने हुए थे, और बिल्डिंग्स भी बनी हुई थी पक्के ईंटों की, ठीक है। और उनका जो ये सारी चीज़ें भी शो कर रही हैं कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई था। इसी तरह से बेटा प्लानिंग ऑफ सिटीज़ एंड बिल्डिंग्स के सेकंड पैराग्राफ में अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आता है द आर्किटेक्चर ऑफ दीज रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यानी कि जो फने तामीर यानी कंस्ट्रक्शन जो थी उनकी वहाँ की रहने की बिल्डिंग्स की, वो भी जो है वो एस्थेटिक सेंस शो कर रही है, यानी कि वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटी को शो कर रही है, डेकोरेशन को शो कर रही है कि उनकी जो बिल्डिंग्स थी रहने की वो भी बहुत डेकोरेटिव थी, यानी डेकोरेशन हुई भी होती थी उनमें भी। और उसके जो घर थे, हाउसेस थे, वो फुल, उनमें भी वॉल्स थी, यानी कि दीवारें वाले घर थे। रूफ्स जो थे उनकी छतें वगैरह जो थी बेटा, फ्लोर्स वगैरह जो थे उनके, वो भी जो है पक्की ईंटों से बेग्ड ब्रिक्स के बने हुए थे। और उसमें इसके अलावा अंडरग्राउंड चैम्बर्स, यानी अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे भी उन्होंने कोई चैम्बर्स वगैरह बनाए हुए थे, और वो भी जो है उसमें भी खास ख्याल रखा जाता था। देयर वाज अ स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द अंडरग्राउंड चैम्बर्स, जिसमें जो है वो हवा का और जो लाइट है उसका खास ख्याल रखते थे। वहाँ पे बाथरूम्स वगैरह भी थे जो कि क्लीन थे और खुशादा थे, स्पेशियस थे, यानी खुशादा, बड़े बड़े वाशरूम्स थे और क्लीन थे, साफ थे, जो कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो कर रहे हैं। इसी तरह बेटा मूविंग टू द थर्ड हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक व्हिच इज द हाउस होल्ड वेयर्स एंड टॉयज। हाउस होल्ड वेयर्स बेटा जो भी घर में इस्तेमाल की चीजें होती हैं, वेयर्स हाउस होल्ड यानी घर के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, और टॉयज यानी खिलौने वगैरह, यानी कि टॉयज जो थे वो इनकी वो देखते हैं कि किस तरह के ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के पास हाउस होल्ड वेयर्स यानी घर के इस्तेमाल की चीजें और टॉयज यानी खिलौने किस तरह के थे। तो इसमें बेटा हम देखते हैं कि घर की इस्तेमाल की चीज़ों में उनके पास क्ले थे, कि क्ले जो है ब्रॉन्ज और कॉपर, इन सब चीज़ों से उनकी चीज़ें बनी भी होती थी। एंड सच थिंग्स फॉर इंक्लूडेड सॉसर, जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, प्लेट्स थी खाना वगैरह खाने के लिए, बाउल्स थे, ठीक है, लार्ज जार्स थे यानी पानी वगैरह पीने के लिए जग्स वगैरह थे, नाइव्स छुरियाँ थी, कुल्हाड़ी एक्सेस थी। ये सारी चीज़ें बेटा घरों के इस्तेमाल के लिए इनके वहाँ से मिली हैं हमें। उसके अलावा अगर हम देखें तो एनिमल्स एंड ह्यूमन स्टेचूज, यानी कि जानवरों और इंसानों के स्टेचूज भी वहाँ मिले हैं, वहाँ पे हमें उनकी इमेजेस यानी उनके फिगर्स मिली हैं। उसके अलावा अगर हम देखें जो कि टॉयज के तौर पे नजर आती हैं हमें, यानी कि खिलौने के तौर पे रखी हैं उन्होंने। उसके अलावा जो कैरियट शोज, यानी कि वहाँ पे एक गाड़ी वगैरह बनी हुई है, यानी कि एक कैरियट कहते हैं वैसा, कैरियट जिसके कहते हैं कि यानी कि दो व्हील्स हों जिसके, और आगे जो है एक घोड़ा लगा हो तो घोड़ा गाड़ी जैसे कहेंगे, तो वो शो कर रही है कि उन लोगों में एक जो है सेंस ऑफ व्हील भी था, सेंस ऑफ व्हील भी उन लोगों में मौजूद था, यानी कि जैसे घोड़ा गाड़ी होगी तो उसमें टायर तो होंगे ही होंगे। तो इस तरह से बेटा ये चीज़ें शो कर रही हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जिसमें है ट्रेड एंड कॉमर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि वो लोग तिजारत किस तरह करते थे, बिजनेस किस तरह करते थे, तो हमें ये चीज़ नजर आती है बेटा, जो भी इन्होंने घर के इस्तेमाल की चीज़ें हैं इनके पास, यानी कॉपर की और ब्रॉन्ज की और सिल्वर की, तो बेटा ये चीज़ें तो हमें जो है वो इंडस वैली में नहीं मिलती हैं, तो इसका मतलब है ये चीज़ें इन्होंने इंपोर्ट करवाई थी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ ब्रॉन्ज की, तो अफगानिस्तान से मंगाई थी। जूल्स की बात करूँ बेटा, जब इस तरह बेटा मैं क्या करूँ कि ये चीज़ें इन्होंने इंपोर्ट करवाई थी, तो ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूँ तो अफगानिस्तान से ली थी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ टिन की, तो जो उन्होंने खुरासान से लिया था। इस तरह बेटा हम मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, जो है कि है गारमेंट्स यानी कपड़े वगैरह, और एडॉर्नमेंट्स यानी कि एसेसरीज जो थी, यानी किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह की एसेसरीज वो इस्तेमाल यानी चीज़ें करते थे। तो हमें वहाँ की डिस्कवरी से पता चला है, from the discovery of that period, we have seen that the people used to wear the clothes made up of cotton linen, यानी लिनन और कॉटन के कपड़े वो बेटा पहना करते थे। एंड कॉटन फैब्रिक यानी कॉटन का कपड़ा इस्तेमाल करते थे, फैब्रिक कहते हैं कपड़े को। दे यूज्ड टू यूज they were using the cotton fabrics, and their dresses were very much decorative dresses they used to use, एंड देयर स्टेचूज शोज, यानी कि जो वो बुत वगैरह हैं, इमेजेस वगैरह हैं, स्टेचूज जो हैं
उनको जो कपड़े इन्होंने पहनाए हैं, द स्टेचूज शोज डेट देयर एस्थेटिक सेंस इन गारमेंट्स, यानी कि जो बुत वगैरह थे उनको जो उन्होंने कपड़े पहनाए हुए होते थे, जो कि हमारे पास अभी भी म्यूजियम वगैरह में मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा कोई डेकोरेटिव थे, तो वो शो करते थे कि किस तरह से डेकोरेशन का सेंस इन लोगों में मौजूद था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ द वॉर वेपन्स, यानी कि इन लोगों में बेटा नेक्स्ट हेडिंग है वॉर वेपन्स, तो किस तरह के वेपन्स वहाँ पे इस्तेमाल करते थे लोग, तो उसमें हम देखते हैं वी कैन सी द बोज यानी कमान, और एरोज यानी तीर, डेगर्स डेगर्स यानी खंजर, एंड एक्सेस यानी कुल्हाड़ी। ये सारी ब्रॉन्ज और कॉपर्स की चीज़ें जो है वो लोग ये इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा बेटा अगर हम देखें तो ये लोग जो है बहुत पीस लविंग और कल्चर्ड किस्म के लोग थे, यानी कि हाई कल्चर के लोग थे, पीस लविंग लोग थे। इसी वजह से जो है जब भी मुख्तलिफ और इनका जो यानी इनके जो वेपन्स हमने देखे हैं वो बहुत सिंपल नेचर के हैं, बहुत एडवांस नेचर के नहीं हैं। तो जो यही वजह थी कि जब भी कोई लोग फॉरेनर्स आते थे तो इन लोगों को आराम से डिफीट कर लेते थे इन लोगों को। बेटा नेक्स्ट हेडिंग अगर हम देखें तो वो है हमारे पास रिलीजन की। तो उस हेडिंग में हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग जो थे उनका रिलीजन्स का सेंस क्या था, यानी कि अगर हम देखें तो वहाँ पे तरह तरह के, अगर हम मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जाएं तो उस जमाने में वहाँ पे तरह तरह के मुख्तलिफ जगहों पे आइडल्स यानी बुत वगैरह और स्टेचूज यानी फिगर्स मिलती थी। तो ये शो कर रहा था कि किस ये लोग भी किसी जो है मजहब को मानने वाले थे, क्योंकि बुत परस्ती करते थे, या बुत को मानने वाले थे क्योंकि बुत वहाँ पे मौजूद नजर आए हैं हमें। तो उसके अलावा अगर हम देखें नेकेड फीमेल, और वो जो बुत वगैरह थे वो एक वुमेन विदाउट क्लोथ यानी उसको कहते हैं नेकेड। तो विदाउट क्लोथ्स नेकेड यानी कि वुमेन्स जो है उनके आइडल्स हमें नजर आते हैं। और माँ देवी यानी मदर गॉडेस को वो लोग क्या समझते थे उसको, उन आइडल्स को, यानी कि वो बुत जो कि मदर गाइडेस यानी माँ देवी के बुत हैं उनको वो खुदा समझते थे उस जमाने में। और जो कि शो करते थे कि ये लोग एविडेंसेस हमें मिले हैं कि ये लोग जो है नेचर यानी कुदरत की और स्टोन की पत्थरों की पूजा किया करते थे। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिलीजन। सिंपली मतलब ये है कि इन लोगों में एक रिलीजन का सेंस मौजूद था, ये लोग किसी रिलीजन को मानते थे क्योंकि वहाँ हमें बुद्ध यानी कि आइडल्स मिले हैं और स्टेचूज मिले यानी डिफरेंट किस्म की फिगर्स मिली हैं, और वो फिगर्स जो है वो नेकेड फीमेल्स की हैं, यानी फीमेल्स विदाउट क्लोथ्स वाली हैं। और उनमें जो आइडल्स हमें बुद्ध जो मिले हैं वो मदर गॉडेस यानी माँ देवी के जो है वो बुद्ध मिले हैं। वो शो कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं किसी मजहब के मानने वाले थे और बुद्ध परस्त थे। और ये लोग जो थे वो नेचर की भी इबादत वर्शिप करते थे, इबादत करते थे, एंड दे यूज्ड टू वर्शिप आल्सो ऑफ द स्टोन्स। नेक्स्ट हेडिंग इज बेटा गंधारा आर्ट। गंधारा आर्ट, व्हेन वी टॉक अबाउट गंधारा आर्ट इट मींस द एरियाज दैट वर इंक्लूडेड इन गंधारा और कॉल्ड गंधारा वर द पंजाब एंड एनडब्ल्यूएफपी मींस रावलपिंडी एरिया एंड द पिशावर एरिया। ठीक है, ये दोनों एरियाज जो है तो इन द एंशिएंट टाइम इन पास्ट टाइम दिस एरिया वाज कॉल्ड एज गंधारा। अराउंड 2500 years, 2500 साल पहले द सिविलाइजेशन डिड वाज डेवलप्ड इन सच एरिया वाज वेरी मच डेवलप्ड बिकॉज बिकॉज द पीपल वर हैविंग अ फाइन आर्ट। वहाँ पे जो लोग थे फन यानी आर्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वहाँ के लोग। हमने देखा है कि तारीख के अंदर क्या हुआ है कि ये जो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का इलाका है, इधर जो है पर्शियंस भी आए हैं, और ग्रीस के लोग भी यहाँ आए हैं, फिर इंडियन जो जाहिर सी बात है जो सिविलाइजेशन है उसका भी असर मौजूद है इस इलाके में था। तो जिसकी वजह से ये जो हमारी सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें हमने पहले भी बात की है कि किस तरह से इसमें जर्मन का, पर्शियंस का और इंडियन सिविलाइजेशन से जब ये मर्ज हुई है तो किस तरह हमारी सिविलाइजेशन यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत यूनिक सिविलाइजेशन बन गई है। बेटा इसी तरह अगर मैं हम देखें तो ये जो गंदारा है, अब गंदारा का एरिया किधर है, ये गंदारा द कल्चरल सीट ऑफ गंदारा वाज टेक्सला, यानी कि गंदारा जो आर्ट हमें मिलता है, गंदारा की जो हमने कहा कि ये आर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा गंदारा का जो आर्ट हमें मिलता है वो जरा टेक्सला में मिलता है। और टेक्सला किधर है, इस्लामाबाद के सामने। उस जमाने में टेक्सला को यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया था क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स डिफरेंट जो सिटीज से स्टूडेंट नॉलेज गेन करने के लिए आते थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। तो उस वक्त टेक्सला को एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस हासिल था, इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्सला को यूनिवर्सिटी का स्टेटस हासिल था। और वहाँ पे एक म्यूजियम भी है जिसको हम टेक्सला कहते हैं। तो इससे हमें पता चलता है सारी चीज़ों के कि किस तरह से वहाँ का जो आर्ट था वो एक मिक्सचर है ईस्ट का भी और वेस्ट का भी। तो बेटा आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।